اسٹیج پر بیٹھے باوقار علماء، اسٹیج پہ بیٹھے باوقار علماء، ملت اسلامیہ کے بزرگ مسلمان، پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والایمان، والصلاة والسلام علی سیدی خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے لفظ کن سے کونین کی تخلیق فرمائی۔ درود و سلام کی ڈالیاں پیش ہو محمد خضرا کی مکین مقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت، جہاں سے آج بھی کونین کی باوقار زندگی کی تحفظ کے لیے یہ صدا عام طور پر آ رہی ہے کہ نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشان چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے۔ سر شام سے لے کر اب تک آپ نے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائے۔ مجھ سے پیشتر مولانا مبارک حسین صاحب سے آپ نے بڑی اچھی اور گھنگرج تقریر کی سماعت کی۔ آپ کے خطیب و امام شاعر ہردل عزیز محترم قاری اسلم صاحب، جن کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور آپ بہت اچھے سے سماعت بھی کرتے ہیں۔ میرے شاگرد علماء کرام کا ایک قافلہ ہے، سبوں کا نام تو مجھے نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ آئیے قدرت و معروف سے قبل اساقہ نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جن کی شان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پلا کا سلام، اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، مجھے بحر سخاوت پلا کا سلام۔ اسی نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں اور پڑھیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی وسیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا صاحب فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، سونا جنگل رات پھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات پھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے۔ اور اسی شعر کی ترجمانی کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا، اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جسے اپنی حالت بدلنے کا، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں،
مومن بھی ہے मुत्तकी भी है। लहुमुल बुशरातुल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, उनके लिए बशारत है दुनिया और आखिरत की जिंदगी में। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात को कोई बदलने वाला नहीं है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हज़रात, आप कुरान पढ़ते हो, जहाँ अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, जहाँ अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया, जहाँ अल्लाह ने हज का हुक्म दिया, जहाँ अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया, रब का कुरान वादे लफ्जों में इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। लेकिन वहाँ हरफ तंबीह नहीं फरमाया। कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हे ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फर्ज किए गए थे। हरफ तंबीह नहीं फरमाया। कुरान फरमाता है, लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है जो उसकी इस्तिताअत रखते हैं। वहाँ भी हरफ तंबीह का नहीं हुक्म फरमाया। नमाज का हुक्म दिया, हरफ तंबीह नहीं फरमाया। रोजे का हुक्म दिया, हरफ तंबीह नहीं फरमाया। हज का हुक्म दिया, हरफ तंबीह नहीं फरमाया। लेकिन जब औलियाए किराम का तज़किरा किया है तो अला हरफ तंबीह से शुरू किया है। आप जानते हो अला हरफ तंबीह का इस्तेमाल कहाँ होता है? अला हरफ तंबीह का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ मामला बड़ा नाजुक होता है, जहाँ बहुत बड़ा खतरा होता है। मसलन आप बिजली घर में चले जाओ, जैसे ही आप बिजली घर में दाखिल होंगे, दाखिल होते ही आपको जगह जगह पर खबरदारी के बोर्ड लगे हुए नजर आएंगे। रीडिंग सुर्खरोश स्टाइल से लिखा होता है, खबरदार खबरदार खबरदार। ये पढ़े लिखे लोगों ने क्यों लिखा? इसलिए कि जहाँ जान का खतरा था वहाँ पढ़े लिखे लोगों ने खबरदारी का बोर्ड लगा दिया, और जहाँ ईमान का खतरा था वहाँ परवरदिगार ने खबरदारी का बोर्ड लगा दिया। खबरदार, कभी बंदों की शान है, गुस्ताखी मत करना। याद रखो, जिस तरह बिजली के तार को हाथ लगाने से जान का खतरा होता है, बंदों की शान में गुस्ताखी करने से ईमान का खतरा होता है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि अल्लाह के वली को हल्के में तुम न लेना, अल्लाह के वली को हल्के में तुम न लेना। मिट्टी से हल्ला वाले, मिट्टी से हल्ला वाले जन्नत बना रहे हैं। मिट्टी से हल्ला वाले जन्नत बना रहे हैं। अल्लाह के वली को हल्के में तुम न लेना, अल्लाह के वली को हल्के में तुम न लेना। मिट्टी से हल्ला वाले, मिट्टी से हल्ला वाले जन्नत बना रहे हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, बेशक जो अल्लाह के वली हैं ना उन्हें कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह के वली कौन है? अगर आज इंसान कहे कि मैं अल्लाह का वली हूँ, हर इंसान अगर ये दावा करने लगे कि आप उसे अल्लाह का वली मान लोगे, कुरान ने कायदा बताया है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, यानी ईमानदार भी होना चाहिए, मुत्तकी और परहेजगार भी होना चाहिए, तब वो अल्लाह का वली होगा। ऐसा नहीं कड़कट्टा हो और कहे कि फला खानकाह से मैं ताल्लुक रखता हूँ, मुझे अल्लाह का वली तस्लीम करो। ऐसे अल्लाह के वली नहीं होते हैं। रात रात पर इबादत करनी पड़ती है, नमाज पढ़ना पड़ता है, तकवा इख्तियार करनी पड़ती है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, यानी जो ईमानदार और परहेजगारी करते हैं, तकवा को परहेजगारी कहा जाता है। आपको पता है तकवा क्या है? अगर मालूम नहीं है तो मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा इंसान से आप समाप्त कीजिए। तकवा अल्लाह से डरने को कहते हैं। अवाम भी अल्लाह से डरती है, खवास भी अल्लाह से डरती है, और अख़स्सुस भी अल्लाह से डरते हैं। लेकिन हमारे डरने में और उनके डरने में फर्क होता है। अवाम का तकवा क्या है?
علامہ بیضاوی نے فرمایا جعل النفس فی وقایت مما یخاف، یعنی نفس کو روکنا اس چیز سے جس سے ضرر کا اندیشہ ہو، جس میں تکلیف کا باعث ہو، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کے 3 درجات ہیں، ایک عوام کا تقویٰ ہے، دوسرا خواص کا تقویٰ ہے، تیسرا اخص الخاص کا تقویٰ ہے۔ عوام کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ کلمہ طیب کا زبان سے اقرار کہے، اس طریقے سے وہ ہمیشگی کی عادات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یہ تو عوام کا تقویٰ ہے۔ لیکن خواص کا تقویٰ کیا ہے؟ ہر گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اخص الخاص کا تقویٰ کیا ہے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مرو اگر مسلمان ہو کر، یعنی مرنا ہے تو مسلمان ہو کر، کیونکہ ایمان رہے گا تب جنت میں جاؤ گے، اگر ایمان نہیں رہے گا تو تم جنت میں نہیں جا سکتے، جو تمہیں دھتکار دیا جائے گا۔ یہ خاص الخاص کا تقویٰ کیا ہے؟ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا بڑا گھنا خوبصورت باغ ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں اسی درمیان ایک پرندہ اڑنا چاہتا ہے، لیکن باغ اتنا گھنا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ایک پرندہ اڑنا چاہتا ہے لیکن وہ پرندہ اڑ نہیں پاتا ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو میرا باغ کتنا خوبصورت ہے، میرا باغ کتنا گھنا ہے، ایک پرندہ بھی اڑنا چاہتا ہے لیکن وہ اڑ نہیں پاتا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور کہا یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، میں نے جب نماز پڑھنا شروع کیا پرندہ اڑنا چاہا لیکن اڑ نہ سکا، تھوڑی دیر کے لیے یاد الہی سے میرا دل غافل ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات کی وجہ سے، یہ بات میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ جسے چاہے جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ بتانے کا مقصد اور منشا یہ ہے مسلمانوں، یہ اخص الخاص کا تقویٰ ہے۔ آپ جس راستے سے گزر جاؤ، ہر علاقے میں آپ کو ایک پیر نظر آ جائے گا، لیکن ان پیر صاحب کو کہیے کہ پیر ہونے کے لیے شرائط بھی ہونا پڑتا، لاہور کے اندر شرائط بھی ضروری ہے، یعنی نماز پڑھنی پڑتی ہے، تقویٰ طہارت اختیار کرنا پڑتا ہوتا ہے، صرف پیر کا ڈھنڈورا پیٹنے سے نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان چاہتا ہے، کیونکہ پیر ایک ایسا بزنس ہے، یعنی مریدین اس کو نذرانہ دیں گے، اس کو پیسہ دیں گے، اور وہ مزے سے جو ہے رات گزارتا رہے گا، یعنی سفر کرے گا تو اے سی میں سفر کرے گا، سفر کرے گا تو فلائٹ میں سفر کرے گا۔ اگر اس سے یہ کہا جائے تو پیر بنتا ہے، لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ، تو اشراق کی نماز پڑھ، تو چاشت کی نماز پڑھ، وہ کہے گا پیر کسی کو اور کو دے دو، مجھے پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ولیوں کی بارگاہ میں جب جاؤ تو زبان سنبھال نہیں، دل سنبھال کے جانا، اور جب علماء کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی زبان کو سنبھال کر کے جانا، کیونکہ یہ علماء کون ہے؟ ان کا مقام اللہ نے بلند فرمایا ہے، کبھی بھی کوئی زبانی عالموں کے ساتھ مت کرنا، اور تاریخ کا مطالعہ کرو۔ بغداد اس سرزمین ہے، جب کوئی انسان ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے، وہ کبھی کبھی بسا اوقات ایمان سے اپنا ہاتھ دھو لیتا ہے۔ کون نہیں جانتا ہے ابن سقا کو؟ بغداد کی سرزمین ہے، حضور غوث اعظم ہے، حضور غوث اعظم پڑھائی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اور بھی لڑکے ہیں، اس میں حضرت عبداللہ تمیمی بھی ہیں، ابن سقا بھی ہیں۔ ان تینوں نے کہا کہ ہمارے سے دور کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، جسے غوث کہا جاتا ہے، چلو نہ اس سے مل کے آتے ہیں، ہمیں ان کی زیارت کا شوق ہوا۔ حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں ہم تینوں نے ارادہ بنایا، چلو نہ اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں، اور جانے کے بعد فیض حاصل کرتے ہیں۔ جب تینوں راستے میں چلے، اس پہ عبداللہ تمیمی کا کہنا تھا تو اس غوث سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا کر رکھ کے جانا چاہے گا۔ ابن سقا نے کہا اس غوث سے ایسا سوال کروں گا وہ جواب دے نہ سکے گا، لیکن حضور غوث اعظم نے فرمایا میں تو ان کی بارگاہ میں جا کر یہ دیکھوں گا کہ وہاں سے مجھے فیض کتنا ملتا ہے۔ یہ تینوں شخص چلے گئے، جب اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں، اس ولی کے پاس پہنچتے ہیں، اچانک وہ ولی غائب ہو جاتے ہیں، اور غضب کی نگاہ کر کے ابن سقا کی طرف کہتے ہیں اے ابن سقا، تیرا یہ خیال ہے کہ میں تیرے سوال کا جواب نہ دے سکوں گا؟ سن، تیرا سوال یہ ہے، تیرا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم سے کفر کے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تیرا کیا خیال ہے؟ میں تیرے سوال کا جواب نہ دے سکوں گا؟ سن، تیرا سوال یہ ہے، تیرا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کان کے لو تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد حضور
حضور سے آدم کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا اے عبدالقادر تم نے ادب کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے اور بغداد کی جامع مسجد میں یہ کہے گا قدمی حاضا علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں اس غوث نے جیسا ہمارے تعلق سے کہا تھا اللہ نے ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کر دیا۔ اللہ الصمد۔ حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں ابن ثقافت و علم بہت ہو گیا، سارے علم میں اس نے شاندار کامیابی حاصل کیا، بڑے بڑے مناظروں کو شکست پاس دے دیا، جمہوریت کا خاتمہ کرنے لگا، اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ المختصر ایسا ہوا جب یہودی پریشان ہوئے یہ مناظرے میں جب سب کو شکست دے دے گا سارے لوگ تو مسلمان ہو جائیں گے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے بن جائیں گے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرتے جائیں گے، پھر عیسائیت میں رہے گا کون؟ اس نے دیکھا کہ اس کا معاملہ بڑا ٹف چل رہا ہے، اس نے کوشش یہ کیا کہ اس کو اپنی لڑکی کو سامنے لایا، جیسے ہی اس کی لڑکی پر اس کی نظر پڑی وہ ابن سودا فرفتہ ہو گیا، وہ دیوانہ ہو گیا، وہ کہا کہ میری اس سے شادی کرا دو۔ وہ بادشاہ تو چاہ ہی رہا تھا کہ یہ شادی کے بہانے ہمارے میں آ جائے، ایک شرط پر شادی کی جائے گی، تمہیں اسلام کو خیر آباد کرنا پڑے گا، عیسائیت کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس نے فوراً اسلام کو خیر آباد کر دیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ عیسائیت کو قبول کرنا تھا تو اس کے جسم میں کوڑ کی بیماری پھیل گئی، بادشاہ نے اسے اٹھایا شہر سے باہر پھینکوا دیا اور کہا کہ یہی وہ بدبخت ہے جس نے ایک ولی اللہ کی شان میں گستاخی کیا۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے من حاجی ولی فقط اذنتہ للحرب، یعنی جس نے میرے ولی سے دشمنی کیا میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ خدا سے کون جنگ کرے گا؟ ہم تو پیشاب اور پاخانہ کرنے میں پریشان رہتے ہیں، اگر 4 منٹ کے لیے ہوا یا 1 سے 2 منٹ کے لیے ہوا اگر بند ہو جائے تو ہم سارے لوگ مر جائیں گے۔ ہم ہوا کے محتاج، رب ہمیں ہوا کے معاملے میں سانس لینے میں ہم رب کے محتاج۔ ہمارے پیٹ میں اگر پاخانہ صحیح سے نہ ہوا اور اس میں دیر ہو گئی تو ہم مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم اپنا پیٹ پھاڑنے کے چکر میں رہتے ہیں تاکہ ہماری گندگی نکل جائے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ سے جنگ ہے، لیکن اللہ کا یہ اعلان ہے من حاجی ولی فقط اذنتہ للحرب، یعنی جس نے میرے ولی سے دشمنی کیا میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کبھی بھی کوئی ہلکا کلمہ اپنی زبان سے مت نکالنا اور کسی بھی ولی کا مذاق مت اڑانا، ورنہ وہی ہوگا تو ابن سقا کے ساتھ ہوا۔ وہ پڑھا تو بہت زیادہ تھا، سارے علم میں اس نے شاندار کامیابی حاصل کی، لیکن بدتمیز تھا، ولیوں کا گستاخ تھا، اور جو ولیوں کا گستاخ ہوتا ہے اس کا ایمان خطرے میں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ولیوں کا گستاخ بننے کی مصیبت کرنا۔ حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ میری طرف متوجہ ہوئے اور میرے تعلق سے اس غوث نے کہا تھا اللہ نے میرے ساتھ بھی ویسے ہی کر دیا، دنیا تو میرے کان کی لو تک پہنچی لیکن ایمان سلامت تھا کیونکہ اس کی گستاخی کم تھی۔ اور میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد میں یہ کہہ رہے ہیں قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن میں ہے۔ بتانے کا مقصد اور منشا یہی ہے مسلمانوں، اسی غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم کو لے چلتا ہوں۔ بغداد میں ایک دن ابر ظاہر ہوا، اندر سے آواز آئی اے عبدالقادر نماز مت پڑھا کر، لیکن پیر بھی تو پیر ہی تھا، دماغ میں ولایت سے سوچا، سوال طریقت سے کہا اے عبدالقادر تو کون ہوتا ہے کہ تو نماز تو پر نماز معاف ہو جاوے؟ نبی ساری رات عبادت کرتے تھے، قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی یا رسول اللہ جو بھی جایا کرے میرے آقا نے انصاف فرمایا تھا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو نبی پہ نماز معاف نہیں، اکبر پہ نماز معاف نہیں، فاروق اعظم پہ نماز معاف نہیں، عثمان غنی پہ نماز معاف نہیں، مولا علی پہ نماز معاف نہیں، طلحہ پہ نماز معاف نہیں، زبیر پہ نماز معاف نہیں، کربلا کے چٹکل میدان پہ میدان پہ امام حسین پہ نماز معاف نہیں۔ تو اے عبدالقادر تو کون ہوتا ہے کہ تم پہ نماز معاف ہو جائے؟ اتنا کسر سہتا تھا کہ کہا زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ جتنا بھی تھا دھواں سے دھواں ہو گیا، اندر سے آواز آئی اے عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اللہ الصمد، حضور غوث اعظم نے فرمایا شیطان تو مجھے گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھ کو میرے خدا نے بچایا۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अभी हुजूर गौसे आजम का पीछा नहीं छोड़ा। जब कहा, जब बारिश होती कहता था पानी की जरूरत है तो पानी भी दे देता था, खाने पीने की जरूरत पड़ती थी तो पत्ते भी गिरा देता था। कोई भी इंसान उसके बहकावे में, शैतान के बहकावे में आ सकता है, लेकिन अभी हुजूर गौसे आजम को उसने छोड़ा नहीं। क्या कहा? तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। अल्लाह समद। बस औकात जब इंसान के सीने में इल्म होता है तो गुरूर आ जाता है, घमंड आ जाता है। मैं तो मैं हूँ, मैं सबसे बड़ा मौलाना, तेरे सामने किसी की हैसियत क्या है। हुजूर गौसे आजम हमें के तालीम दे रहे हैं कि उन्हें उनके इल्म ने नहीं बचाया, उनको उसके खुदा ने बचा लिया, रब्बे कायनात ने बचा लिया। इसलिए जब गुरूर आए, सूफियाए किराम फरमाते हैं वो सूरह तारिक पढ़ ले, फलयंजुर इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिम्मा ताहिर यखलुक़ु मिन बैन सल्बि व तराइब। इंसान को अपनी पैदाइश पे गुरूर पे गौर करना चाहिए। जब हम अपनी पैदाइश पे गौर करते हैं तो हम पैदा हुए कब्र जलील से, हमने मां के पेट में माहवारी खून खाया है, हम पैदा हुए गंदे जगह से, हमारी औकात क्या है। इसलिए जब फिर गुरूर और घमंड आए, सूरह तारिक को पढ़ लेना ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए हम इंसान हैं, इंसान की तरह रहना चाहिए, हमें अकड़ना नहीं चाहिए। एक था जिसने अकड़ की कोशिश की थी, जिसे फिरौन कहा जाता है। उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, अपने सारे हवारियों को बुलाया, अपने सारे मवारियों को बुलाया और कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बुलंद व बाला रब हूं। तो सारे लोगों ने तो यही कहा था, खुदा वो है जो बारिश नाजिल करता है, तू खुदा है तो खुदा ही का दावा करता है, बारिश नाजिल कर देना। ये फिरौन गया उसकी बारगाह में, पहाड़ पे जाकर वो रुकर दुआ करने लगा, मौला आज मेरी इज्जत का भरम रख ले, मौला मेरी लाज बचा ले, मौला मेरी एक फरियाद सुन ले, चाहे जितनी सजा देना हो दे देना। रब ने फरमाया सुनो, कि सुनो तुम्हारी हुक्मरानी है, तुम्हारी हुकूमत में अगर कोई शख्स तुम्हारे खिलाफ बगावत करे तो उसे क्या कहोगे? कहा उसे पानी में डुबा डुबा के मार दूंगा। कहा मार दोगे? जाओ बारिश नाजिल हो गई, डायरेक्ट फेंकना शुरू कर दिया। देख मैं खुदा हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बुलंद व बाला रब हूँ। यही वजह है कि मैंने बारिश नाजिल कर दिया। लोगों ने खुदा भी तस्लीम कर दिया, बारिश भी हो गई, लेकिन हजरत मूसा के खिलाफ उसने प्लान तैयार किया। यही है जो हमारे दीन पे रुकावट डालता है, यही है जो हमें एक अल्लाह की तरफ तालीम देता है, यही है जो कहता है कि मूसा का कलमा पढ़ो। हम इसके साथ जंग करते हैं और जैसे ही जंग की बात आई, रब ने मूसा को फरमाया मार की लाठी दरिया है नील में, दरिया फट गया, मूसा पार हो गए, उनके हवा मवारी पार हो गए, उसका लश्कर पार हो गया। फिरौन अनानियत का बादशाह, उसने सोचा मैं भी पार हो जाऊंगा। जब बीच समंदर पे गया, दोनों पानी मिल गया, वहां जाकर मलकुल मौत ने कहा था तुमने खुदा की बारगाह में तो यही को कहा था, तो रब तो मेरी बड़ी हुक्मरानी है, मेरा रियाया जो मेरे खिलाफ कहेगा उसको मैं पानी में डुबा डुबा के मारूंगा। बोल तुमने रब के खिलाफ बगावत किया कि नहीं? उसे पानी में डुबा डुबा के मार दिया गया। बताने का मकसद और मंशा ये है मुसलमान हो कि कभी भी गुरूर इंसान को नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। नमाज पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुमने नमाज में गुरूर कर लिया कि मैं सबसे बड़ा नमाजी, तो फिर आपके नमाज से क्या फायदा हुआ? इसीलिए इल्म है। हुजूर गौसे आजम ने क्या कहा? मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझको मेरे खुदा ने बचा लिया। हुजूर गौसे आजम कौन है? इन्होंने नमाज इशा के वजू से 40 साल तक फज्र की नमाज पढ़ी है, तो पूरा कुरान एक टांग में खड़े होकर खत्म किया करते थे। जब एक पांव में दर्द होता था दूसरे पांव में खड़े हो जाते थे, दूसरे पांव में दर्द होता था पहले पांव में खड़े हो जाते थे। आज हम नमाजों से कोसों दूर है। आज हमको देवबंदी वहाबी यही तो कहता है तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम लोगों के यहाँ सिर्फ जलसा जुलूस होता है, तुम सिर्फ मिलाद खानी में इत्तेफा करते हो। आज सुबह मुस्तफा जाने रहमत ने क्या इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा वो है नमाज। तुमने हराम खाया या हलाल खाया या क्या किया, वो बाद में पूछा जाएगा। पहले ये पूछा जाएगा कि तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। फमन अक़ामहा अक़ामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन तरकहा फ़क़द हदिमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को
बैठा दिया, जब खंभा रहेगा ही नहीं, जब टूटी रहेगी ही नहीं, तो ये सामियाना कैसे कायम रहेगा? यानी कुफ्र की सरहदों में हमेशा लड़ोगे तो ईमान कहां से सलामत रहेगा? मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी गोया उसने करीब कुफ्र किया। यानी जो सरहद में होता है वो कब मरेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, कभी गोली इधर से लगेगी कि उधर से लगेगी। इसी तरीके से जो कुफ्र की सरहदों में नाचता रहे और कहे कि हम सबसे बड़ा मुसलमान, इसलिए नमाज पढ़ो। नमाज हुजूर फरमाते हैं इन्ना अव्वलु मा युहासिबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलात, यानी सबसे पहले कल क़यामत के दिन जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। मुस्नद अहमद की हमें हदीस है कि नमाज़ों का हश्र जो है अमान के साथ होगा, फिरौन के साथ होगा, क़ारून के साथ होगा। यानी जिसके यहाँ नमाज नहीं है वो भी एक लोटिया लेकर के सुबह सुबह उठता है ताकि सुबह के ताज़ा तरीन हवा लें, लेकिन हमारे में नमाज फर्ज है। तो इंसान नमाज पढ़ता है सुबह की, हुजूर फरमाते हैं रकअतुल फज्र दुनिया व मा फिहा, दुनिया से बेहतर फज्र की 2 रकात है। लेकिन ये मुसलमान समझे तब तो कि सुबह की हवा साफ सुथरी होती है। इंसान आज बीमार हो रहे हैं, परेशानियों का सबब है। एक लड़का सऊदी में रखता है, सिर्फ पैसा भेज रहा है, कभी माँ बीमार, कभी बहन बीमार, कभी रिश्तेदार बीमार, कभी अड़ोस बीमार, कभी पड़ोस बीमार। यानी सिर्फ कमाने का मकसद ऐसा लगता है कि सिर्फ दवा ही को खरीदना है, इलाज और मुआलजा करना है। यानी पेशाब करने से पहले दवा, पखाना करने से पहले दवा, टेबल में दवा। इस तरीके से जब दवाइयों ने बीमारियों को घेर लिया है, लोग कहते हैं योगा करो, इस तरीके से योगा करो कि सुबह सुबह उठो, कुछ कदम चलो, इससे तुम्हारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। लेकिन उनके योगा का तरीका अलग है, दिल्ली के योगा का मास्टर का तरीका अलग, फलां के योगा के मास्टर का तरीका अलग, रामदेव के योगा का तरीका अलग। आपको मालूम होना चाहिए मुरली मनोहर जोशी जो इस्लाम दुश्मन पार्टी के एक शख्स है, जिसे कहा जाता है भाजपा, उसने कहा कि सारे लोगों का तरीका अलग है, लेकिन जब मुस्तफा का जब मैं देखता हूँ नमाज पढ़ने के स्टाइल को, उससे बेहतर कोई योगा नहीं है। उसने भी मानना पड़ा कि ना मुस्तफा से बेहतर कोई तबीब है, ना मुस्तफा से बेहतर कोई हकीम है। लेकिन उसके बावजूद भी हम नमाज नहीं पढ़ते। हम उस गौस के मानने वाले हैं जो नमाज रात रात भर पढ़ा करते हैं, जिन्होंने नमाज इशा के वजू से 40 साल तक फज्र की नमाज पढ़ी है। मैं उसी अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में ले चलता हूँ। हुजूर गौसे आज़म को किसी चाहने वालों ने दावत दिया, बताने के जब चाहे हुजूर गौसे आज़म कहे और मुरीदीन को लेकर गए। एक छोटी सी बच्ची आई, एक नन्ही सी बच्ची आई, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आया। हुजूर गौसे आज़म का हाथ खुला, दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बताने का मकसद और मंशा ये है मुसलमान, हुजूर गौसे आज़म को जब किसी चाहने वालों ने दावत दिया तो नन्ही सी बच्ची आई, एक छोटी सी बच्ची आई, जो हुजूर गौसे आज़म का हाथ धरा हो। हुजूर गौसे आज़म का हाथ धुलाना चाहा, हुजूर गौसे आज़म देर तक हाथ धोते रहे, देर तक उसका मुआयना करते रहे, देर तक उसको मुलाहिजा करता रहे। उसके बाद हाथ धो लिया। वो लड़की भी कैसी थी, हाथ धुलाती रही। उसने ये नहीं कहा कि हुजूर पानी ज्यादा खर्च हो रहा है, हुजूर खर्ची हो रही है, वो भी चाहने वाली थी। जब देर तक हाथ धोया, धोने के बाद मामला ये हुआ, दिक्कत के हाई हुजूर गौसे आज़म ने जब खाना तनाउल फरमा लिया, सारे मुरीदों ने कहा हुजूर मसला है। कहा क्या मसला है बताओ। कहा देर तक हाथ धोने की वजह समझ में नहीं आई। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया जब उस बच्ची ने मेरा चेहरा हाथ धुलाना चाहा, जब उस बच्ची ने मेरा हाथ धुलाना चाहा, मैंने उसकी तकदीर का मुराक़बा किया, उसकी तकदीर का मुलाहिज़ा फरमाया कि बेशक आगे चल करके जहन्नम में जाने वाली है, जहन्नम की बातों में डाली जाने वाली है। मैंने सोचा कि वो अब्दुल कादिर का हाथ धुला है वो जहन्नम में जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं देर तक हाथ नहीं धो रहा था, बल्कि उसकी जहन्नम वाली तकदीर को धो रहा था। आप पुराने जमाने से सुनते आ रहे हैं, निगाह वली पे वो तासीर देखे, बदल की हद
वफादारों की तकदीर देखी। जो वलियों की सोहबत में रहता है उसकी तकदीर बदल जाती है। आप जानते हो तकदीर किसे कहा जाता है? तकदीर की 3 किस्म है। एक है क़ज़ा मुबरम, यानी अटल फैसला, अल्लाह ने लिख दिया तो होके रहेगा, नबी को भी हुक्म है के बारे में दुआ ना फरमा है। एक है तुम्हें क़ज़ा है मुबरम, यानी क़ज़ा है मुबरम की तरह, और एक तकदीर है जो दुआ से टल जाती है, क़ज़ा है मुअल्लक़ कहा जाता है। हुज़ूर गौसे आज़म तकदीर को बदल देते हैं। आपने तारीफ पढ़ी होगी, हज़रत शैख़ हम्माद है, उनका एक मैन मुरीद है, बहुत बड़े पीर, बहुत पैसा वाला है, बहुत मालदार है, अपने पीर की खिदमत में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है हुज़ूर मैं सफर में जाना चाहता हूँ, तिजारत के गर्द से जाना चाहता हूँ। एक साहब ने उसकी तकदीर का मुराक़बा किया, उसकी तकदीर का मुलाहिज़ा फरमाया कि बेशक आगे चलकर ये जहन्नम में जाए, बेशक ये जो है आगे चलकर इसके साथ बड़ा हादसा आने वाला है और माल लूट जाएगा। चुनांचे पीर साहब है, उसकी तकदीर का मुराक़बा किया, उसकी तकदीर का मुलाहिज़ा फरमाया बेशक अल्लाह ने तेरी तकदीर में ये लिख दिया है कि अगर तू इस सफर में जाएगा तेरा माल भी जाएगा, तेरी जान भी जाएगी, लिहाजा इस सफर में मत जा, जान बचेगी, लाख नहीं करोड़ रुपया कमा लेगा। ये सबसे मुतमईन नहीं हुआ, इजाजत दे दीजिए ना, सफर बड़ा कामयाब रहेगा। हुज़ूर शैख़ हम्माद फरमाते अरे नादान मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना बोल रहा हूँ, अल्लाह ने तकदीर में ये लिख दिया है कि अगर तू इस सफर में जाएगा तो तेरी जान भी जाएगी, तेरा माल भी जाएगा, लिहाजा इस सफर में मत जा। पीर से मुतमईन नहीं हुए, पीराने पीर की बारगाह में चले गए। जब गौसे आज़म के पास पहुंचते हैं, अर्ज़ करता है हुज़ूर सफर करना चाहता हूँ, तिजारत के वर्ग से। पीराने पीर कभी उसकी तकदीर का मुराक़बा किया, उसकी तकदीर का मुलाहिज़ा फरमाया, देखा कि बेशक आता है, बेशक इसके साथ बुरा मामला होने वाला है। पीराने पीर ने भी कहा कि अगर तू इस सफर में जाएगा तो तेरी जान भी जाएगी, तेरा माल भी जाएगा, लिहाजा इस सफर में मत जा। अब ये कहने लगा हुज़ूर आज तक आपके यहाँ से कोई नाउम्मीद लौटा है, कोई खाली हाथ लौटा है, और तकदीर में तो अल्लाह ने लिखा ही है। आप दुआ फरमाएं रब मेरी तकदीर को बदल देगा। हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं जा सब तो कादिर तेरा ज़ामिन है, क्या तो कादिर तेरा ज़ामिन है, क्या तो कादिर तेरा ज़ामिन है। चला गया, सफर किया, लाखों रुपए कमाया, वो वापस लौट रहा था, साथ के रास्ते में रात हो गई, वहीं जंगल का क़याम किया। अचानक साथियों का एक काफिला आया, तो पूरे काफिले को लूट रहे हैं, सबको फारत कर रहे हैं। एक साथी उसके पास भी आया, तो उसके सीने पर सवार हो गया, खंजर गला पर फेर दिया, गला कट गया। जब जो हैबतदार ख्वाब उसने देखा, ख्वाब उठा, अपने गले को देखा, अपने जिस्म को देखा, अपने अड़ोस पड़ोस साथियों को देखा, यकीन कर लिया कि हकीकत में वाक़या नहीं बल्कि ऐसा हुआ है। जब फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुक़द्दस गलियों में पहुंचता है, सोचता है पहले पीर के पास जाऊं, पीराने पीर के पास जाऊं। अब ये सोच रहा है, शैख़ हम्माद आवाज़ देते हैं अरे क्या पहले पीराने पीर की बारगाह में, उन्हीं की दुआओं की बरकत से तू सही सलामत लौटा है। अगर उनकी दुआएं न होती तो तू यकीनन हलाक और बर्बाद हो गया होता। हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह में जब ये शख्स पहुंचता है, पहुंचने के बाद हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि अल्लाह ने तो अपना फैसला पूरा किया, लेकिन हकीकत में पूरा नहीं किया, बल्कि ख्वाब में पूरा किया। मैंने तेरे लिए 70 बार दुआ किया है और मेरी दुआ पर 70 औलिया इकराम ने आमीन कहा है, इसलिए तेरी जान की सलामत है, तेरा माल की सलामत है। आपको ये कहना पड़ा, मैं उनका दामन थाम कर मुतमईन हूँ, इसलिए काफिले की फूट हो गई, काफिले की तादाद से। यकीनन आप अगर गौसे आज़म से मोहब्बत रखते हैं तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएगी। आप अगर गौसे आज़म से अकीदत रखते हो तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आप गौसे आज़म से चाहत रखते हो तो यकीनन आपके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ गौस के नाम लेने से कुछ नहीं होता। आपने तारीख में भी पढ़ी होगी कि हुज़ूर गौसे आज़म तकदीर को बदल देते हैं। अभी कोई शक पढ़ रहे थे कि हुज़ूर गौसे आज़म ने बेटी को बेटा बना दिया, क्योंकि एक औरत थी जिसके साथ लड़की हो, 6 लड़की हो चुकी थी, 7वां भी पेट में होने वाला था, बच्ची होने वाली थी। आज भी लोगों को लड़कियों से बड़ी नफरत है। जब 2-3 बेटी होने लगे तो लोग धमकी देते हैं, अगर बेटी हुई तो मसला याद है ना, यही वाला दे दूंगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अरे लड़की हो या लड़का, उसको देखो जिसको अल्लाह ने औलाद अता की नहीं है, उससे तुम बेहतर हो। तुम्हें भी औलाद को नहीं बनाया, तुम्हें बांझ को नहीं बनाया, तुम्हें भी औलादे नरीना ना सही, लेकिन औलादे मोहम्मद को अता किया। लड़की जैसे औलाद
औलाद को आपको अल्लाह ने अता किया है, लोग बेटियों को हकारत की नजर से देखते हैं। आप सुना होगा ये बेटियों की कोई हैसियत नहीं थी, ये मेरे हुजूर ने इतना ऊंचा मकाम दिया कि जब बेटी है तो रहमत है, जब बीवी बने तो शहर का लिबास है, और जब माँ बने तो इसके कदमों में जन्नत को रख दिया है। और इससे आप नफरत करते हो, क्या तुम रिस्क के मालिक हो ना हम रिस्क के मालिक हो? जाओ देखो कीड़े मकोड़े को अल्लाह रिस्क देता है, नंगा अपाहिज को अल्लाह रिस्क देता है, क्या बेटी की वजह से तुम्हें रिस्क नहीं देता? भूल जाके तू खिलाता है, बल्कि तुम्हें बेटियों की बरकत से तू खाता है। आपने देखा होगा साथ बेटा वाला भीख मांगता है, लेकिन साथ बेटी वाला ऐसा है कि वो खुश कदम के साथ जिंदगी गुजारता है। ये जमाना पल भी रहा था, लोग कहते थे कि हुजूर से पहले लोग जिन बेटियों को जिंदा तरगोर किया करते थे, आज वो सूरत तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो कमी है। आज भी लोग बेटियों को जिंदा तरगोर करते हैं, पेट में देखा बेटी है, अल्ट्रासाउंड से पता चल गया, उसको वास करा देते हैं। क्या कयामत के दिन तुम्हें जवाब देना होगा? हमारे बेटे मर जाएंगे तो तेरा हाल क्या होगा? किताब पर कहा था, उसमें मामला ये हुआ था, इस तरह की बात बताई गई थी कि इंसान की 6 बेटी हो गई, 7वीं बेटी हुई, बड़ा मजबूर हुआ, बड़ा मकसद में पढ़ा कि बेटी की वजह से जमाने में मुझे छुटकारा जाता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? अखीर बेटी को उसने रोड में रख दिया ताकि को लेकर के चला जाए। अल्लाह सबर गुजर गई, कोई इसको ले जाने वाला नहीं। बाप ही होता है, बेटी को लेकर के आया, कई दिनों से कहने लगा, रखा, लेकिन किसी ने उसको कबूल न किया। उसने कहा कि मेरे घर में आई है, मेरे ही घर में रहोगे, चलो मैंने रख लिया। रखने के बाद मामला ये हुआ, उसके पास लगातार एक लड़का होने लगा। एक लड़का हो तो पहली लड़की मर जाती, इसी तरीके से 7 लड़के हुए, बेटियां सब इंतकाल हो गई। एक लड़की कफील में बच गई, रोड में फेंकी हो गया था। अल्लाह सबर, जरा इत्मीनान से सुनिएगा और बड़े गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। वो लड़की जब बड़ी हो गई, बड़ी खूबसूरत लड़की, बड़ी मीठी लड़की और बड़ी तहसीन याफ्ता लड़की, लोगों ने बच्चों ने उससे पूछा कि आपको अल्लाह ने कितना इल्म अता फरमाया, तुम्हें हुस्न जमाल का मर्दा बनाया, ज्यादा हो रही है, शादी क्यों नहीं कर लेते? सुनाना शुरू किया, सुनो मेरी बात, मेरे पास का कोई लड़का नहीं होता था, लड़का होना शुरू हुआ, लड़कियां सब मरने लगी, कोई बचा नहीं। 7 लड़के हुए, कोई अमेरिका में जॉब करता है, कोई फ्रांस में जॉब करता है, कोई जोरू का गुलाम बना हुआ है, कोई कभी कभी किसी वक्त फोन भी नहीं करता। अगर मैं शादी कर लूंगी तो दूसरे घर चले जाऊंगा, ये बुढ़ापे बाप का सहारा कौन बनेगा? बेटियों को जिंदा तरगोर करने वालों, अल्ट्रासाउंड से पता लगाने वालों और ये कहने वालों को उसे पास करा दो, ऐसा तेरे साथ मामला होगा, तुम रिस्क के मालिक हो, न कोई और रिस्क का मालिक है, रिस्क का मालिक तो मेरा परवरदिगार है। और तारीख का मुताला करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक सत्य के पेट में, यानी औरत के पेट में बच्चा था, और वो बच्चा जो है जब हुआ उसके साथ भी यही मामला होने वाला था कि जब बच्चा लड़का हुआ तब तो ठीक है, और नहीं तो अगर लड़की हुआ तो तेरी खैर नहीं। सफर में जा रहा था, काफिल में जा रहा था, उसको जैसे ही पता चला कि शायद पेट में दर्द हुआ, वो कताए हाजत के लिए गई, दूर जाने लगी, बच्चा जन्म दिया, सोचा ये खड़ूस के पास अगर के बच्चा लेके जाऊंगी, डांटेगा, धुतकारेगा, चकाचक की नजर से देखेगा। कलेजे में पत्थर रखा और बेटी को वहीं छोड़ दिया, चला गया, सफर किया। 4 महीना जब वापस हो रहा था, उसके बाद कहा रुके मैं पेशाब करती जाती हूँ। अल्लाह समझ, आप मुलाहिजा करो मुसलमानों, लोग समझते हैं बेटी की वजह से रिस्क घट जाता है, बेटी की शादी में जहेज कहाँ से आएगा, फला कहाँ से आएगा, बिस्तर कहाँ से आएगा, 50,000 का पलंग कहाँ से आएगा। लेकिन सुनो, 4 महीने के बाद जो औरत वापस आती है तो सोचता चलो बेटी को तो ना देख पाऊंगा, कम से कम बेटी की हड्डी को तो देख लूंगा, उसके कुत्ते को कुत्ते, उसकी लाश को कुत्ते खा गए होंगे, शायद उसकी बोसीदा हड्डी को मैं देख लूं। कहा आप लोग ठहरने में जाता हूँ, और जैसे ही वहां गया और देखा कहा खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, मुक्का मासा काफले में मच गया, खत्म हो गया। शायद सांप ने डस लिया होगा, या किसी सहर सांप ने जो है डंक मार दिया होगा, और उसका शौहर आया, काफला वाला आया, क्या देखता है वो बच्ची पड़ी हुई है, एक टाइम से आती है और दूध उसे पिला करके चली जाती है। 4
महीना हो गया, देखो कुदरत का निजाम कैसा है, ना तुम खिलाते हो ना हम खिलाते हैं, है जो को मुताहिद कर दिया। बताने का मकसद और अच्छा ये है, कभी भी बेटियों की हक है बेटियों को हक़ारत की नजर से ना देखो। आजम के जमाने उसने अपनी बीवी को कहा था, अगर बेटी हुई तो अंजाम तुम सब देना, मेरा खैर नहीं है। आजम की बात कहा कि हुजूर देखिए ना बेटा है या नहीं। हुजूर आजम ने उसकी तकदीर का मुराक़बा किया, तकदीर का मुलाहिदा फरमाया। बेटा पेट में जो होने वाला है वो भी बेटी होने वाली है, वो भी बच्ची होने वाली है। उसने कहा कि सुनो किस्मत का लड़का नहीं है, तुम चुनाचा किसी पे इत्तेफा कर ले। लेकिन औरत बड़ी मायूस हो गई, कहा छोड़ देगा, फैसला दे देगा। आज के लोग जवाब में तलाक तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं और फिर बोलते हैं हुजूर क्या करें हो गई, मैंने वसीयत दे दिया था। कौन लड्डू खिला के तलाक देता है, कौन प्यार मोहब्बत से तलाक देता है। ये जबान में कभी इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना। आज तुम्हारे माशरे ने तो माहौल को खराब किया है। जब कोर्ट में मियां बीवी जाता था, उसने इतना फैसला दे दिया, उसने उतना फैसला दे दिया। वो चाहिए तो क्या पता कि शरीयत ने क्या कानून मुकर्रर किया है। जिसको पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं, जो खड़े खड़े मुतता हो, जो एक लोटिया में हक में मुतने के लिए जाता हो, जब खाना करता साफ करने का, वो क्या शरीयत के बारे में बताएगा। इसमें हिकमत कौन सी है, इसका मामला क्या है। जब कोर्ट में आया तो आपने देखा अंजाम क्या हुआ होगा। उसने यही कहा था कि अगर बेटी हो गई तो फैसला दे दिया जाएगा। हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में आवाज से किसने कहा था, आप फरमा दीजिए अल्लाह ने तकदीर को बदल देगा। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया अच्छा, वो लड़का पैदा हो गया। बताने का मकसद और मंशा ये है मुसलमान हो, हुजूर गौसे आज़म तकदीर को बदल देते हैं। हुजूर गौसे आज़म के पास एक औरत आई, ए गौसे आज़म है पीराने पीर, आप मेरे लिए दुआ फरमाइए ताकि उनके लड़का हो जाए। कई लड़कियों वाला मामला था कि लड़की होती जा रही है, मुकालमा होने लगा, रब से बातचीत होने लगी। आज़म फरमाते हैं एक लड़की अता फरमा, रब की तरफ से आवाज आई एक लड़का अता फरमा। कहा इसका लड़का नहीं। आज़म बोले तो लड़का आता, अरे लड़का ही नहीं है तो कहाँ से होगा। इसी तरह 13 तक बात पहुंच गई। आज़म ने फरमाया नहीं दुआ कबूल करता था तो अपना महबूब क्यों बनाया था। गौसे आज़म का ये कहना था कि रब ने उसे 13 लड़की अता फरमाए। यदि आप गौसे आज़म के अकीदत रखते हो, मोहब्बत रखते हो, तो आपकी भी औलाद होगी और जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। देने वाला तो हकीकत में अल्लाह है, उनके नेक बंदों को छुट्टे में दिया जाता है। मैंने के मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया था। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार जो अल्लाह के वली हैं ना उन्हें कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह के बंदों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के जाना, और उलमा की बारगाह में जाओ तो ज़बान संभाल के आना। हमारी ज़बान न जाने क्या से क्या पकड़ी रहती है, हम पठान बातें कर देते हैं। काम उसकी कोई हैसियत नहीं, इसका बात एक घर का बच्चा नहीं मानता है, हुक्मरानी करता है। तुमने इमाम का मर्तबा नहीं समझा। सुनो कुरान क्या कहता है, को बुलंद फरमाएगा, इतना बुलंद फरमाएगा, इतना बुलंद फरमाएगा, इख्तियार दिया जाएगा। इख्तियार दिया जाता है, चाहो शिफाअत करो। कोई कहेगा मैंने लोटा भर पानी दिया था, जन्नत कहा जा। ये है उलमा की शान। उलमा की ज़बान में जो है बारगाह में कभी गुस्ताखी मत करना। और तारीख का मुताला करेंगे हाँ आपको समझ में आएगा। उनका वाक़या आपने हज़ारों बार सुना होगा, लेकिन मैं वाक़या आपको नहीं सुनाना चाहता हूँ। वाक़या के पत्र से निकले इसके नताइज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बुजुर्गों से आपने अपनी माँ को क्या नसीहत किया था? किया था बेटा झूठ मत बोलना। जब जा रहे थे तो पैसा तो बच गया था, लेकिन उन्होंने पैसा बचाया नहीं, बल्कि कहा कि सुनो रुपया है। हुजूर गौसे आज़म का तेवर ये बता रहा था कि 40,000 रुपया क्यों ना हो, 40 करोड़ रुपया क्यों ना हो। हल्की सी बात के लिए बहुत झूठ नहीं बोलते, इसलिए कि माँ ने नसीहत किया था। आज आपका बच्चा खरीदने गया, अगर दुकान वाला पूरा पैसा दे दिया तो ऐसा दबा के खाएगा, मिलेगा इससे बड़ा कोई होशियार ही नहीं। तो आपका बेटा गौसे आज़म बनेगा। आपका बेटा हमारे बच्चों को कहाँ गौसे आज़म की किताब पढ़ने की तौफीक होती है। इनको तो फ्री फायर से फुर्सत नहीं मिलती है, इनको तो पॉप उठाने से फुर्सत नहीं मिलती है। आप सन्नाटे में आप देखेंगे तो पूरा खेल खेलते रहते हैं बच्चे, और इस तरह खुद
पूरा रात रात भर जागता है, उनकी आंखें खराब हो जाती है। फजर की अजान हुई, जब इंसान रात में सोएगा नहीं, उसकी आंख खराब हो जाएगी, वो परेशान रहेगा। कुरान ने क्या फरमाया? अल्लाह ने रात को सोने के लिए बनाया है, लेकिन हम रात को जागते हैं, हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, हम दूसरी तरफ जो है ना मुतवज्जा हो जाते हैं। तालीम हासिल किया करो। हुजूर गौसे आदम का तेवर ये बता रहा था, वो 40 दीनार क्या था, 40,000 दीनार भी होता तो हुजूर गौसे आदम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि झूठों पर अल्लाह की लानत है, झूठों पर अल्लाह के रसूल की लानत है, झूठों पर लोगों की लानत है, झूठों पर फरिश्तों की लानत है। और लानत की सत्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप हम लोग जो है झूठ बोलते हैं, थोड़ी सी परेशानी आई झूठ बोलते थे, हम झूठ बोलते थे, लेकिन आप झूठ और क़यामत से किसी ने पूछा कि अल्लाह ने आपका मर्तबा इतना बुलंद फरमाया कि बंदे का ताजदार बनाया, मर्तबा के ऊपर आपको फायद किया है, मामला क्या है, आप कौन सा ऐसा काम करते हैं? फरमाया सुनो, दो चीजों को लागू कर लिया, बस ये दो बात आप याद रख लीजिएगा, पूरी तकलीफ आपको याद नहीं रहेगी। बस दो चीजों को मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अक्ल हलाल, सिद्क़े मकार, यानी हलाल खाना और सच बोलना, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा इनाम अता फरमाया। आज हमारे साथ मामला क्या होता है? हजरत हराम नहीं खाएंगे तो स्कूल के बच्चों का फीस कहाँ से होगा, या हुआ घाट का जो है फिल्टर कैसे लगेगा, फीस में इतना बिल कटता है कहाँ से आएगा, घर में मार्बल कहाँ से होगा। सुनो, तुम्हारी औकात क्या है? वक्त का सिकंदर आजम, उसने आज ही से जंग का क्या पता किया था। आपको हैरत होगी, उसकी उम्र कितनी थी? 15 साल की उम्र में जब उसने सूर की आंख खोला, देखा कि मेरा बाप एक छोटे इतिहास का बादशाह है यूनान का, मुझे पूरी दुनिया में हुक्मरानी करनी है, मुझे पूरी दुनिया को कब्जा करना है, तो पूरी दुनिया का बादशाह बनना चाहता हूँ। आपको हैरत होगी, 32 साल 8 महीने की उम्र है, 30 साल 8 महीने के उम्र है, आदमी के साथ दुनिया पता कर दिया। अचानक टाइफाइड का मर्द हो गया। आज से कुछ साल पहले कोरोना का जैसा इलाज नहीं था, इसी तरीके से टाइफाइड का इलाज नहीं था। जब सबको मरने के करीब वो पहुंचा, हमारी मवाली को कहा, अपने दाहोदस्तों को कहा, जब मैं मरने लगूं तो मेरा हाथ कफन के बाहर रख देना, ताकि दुनिया वालों को पैगाम मिल जाए। आधी से ज्यादा दुनिया फतह करने वाला जब इस दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। हम हराम खोरी करके लेके क्या जाएंगे, हम दूसरे का माल खरीद के लेके क्या जाएंगे, हम अपने भाई की जमीन हड़प करके क्या ले जाएंगे। कयामत के दिन को तुमको जवाब देना ही पड़ेगा। इसलिए हुजूर गौसे आज़म से जब पूछा किसी ने कि अल्लाह ने आपको इतना मर्तबा क्यों अता फरमाया, कहा मैंने अपने ऊपर दो चीजों को लाजिम किया, एक अक्ल हलाल, दूसरा सिद्क़े मकार। सच बोलने की वजह से क्या होता है और झूठ बोलने की वजह से क्या होता है। बगदाद की सरजमीन है, एक शख्स है जो तिजारत करता है, लेकिन सुन्नत के ऐन मुताबिक है। अगर कोई शख्स आता तो कहता है कि सुनो, ये कपड़ा खराब है, इसकी वजह से कीमत बढ़ जाती है, ये कपड़ा अच्छा है, इसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ जाती है। अजान को भी वो बुजुर्ग ने कहा कि बाद में नमाज पढ़ना, मैं आता हूँ नमाज पढ़ के। तो नमाज जब पढ़ने गए, इसी दरमियान एक काफिला वाला आया, यहूदी आया, और उसने कपड़े का एक थान खरीदा, पैसा चला गया। जब वो खरीद रहा है, आने के बाद कहा कि हुजूर वो बॉक्स में बहुत ताला लगा हुआ था, आप नमाज पढ़ने गए थे, इस दरमियान एक शख्स आया काफिला में, और उसने जो थान खरीदा, इतना पैसा दिया, आप अपनी अमानत पकड़िए। कहा सुनो, कौन सा कपड़ा तुमने को बेचा? कहा कि फलां कपड़ा। तो उसने ऐड का तुमने बताया, इसकी जानकारी नहीं। फिर उन्होंने कहा तुमने बहुत बुरा किया, हम रहते थे कहाँ से आया था हमको क्या पता, भड़कने का अच्छा मौका मिल जाता। कहा चलो आया काफिले में, कहा उसको ढूंढता फिर हो, कितने हसास के हलाल के मामले में। कहा खबरदार, तुमने बहुत गलत किया है, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान किया। उस पर समाज के दौड़ते रहे, देखा किसी जगह पे खाने पीने का पड़ाव डाले हुए हैं। जैसे ही कहा कि कौन शख्स है जिसने बगदाद की सरजमीन से फला दुकान से कपड़े का एक थान खरीदा था, तो सबसे कहा क्या हुआ, क्या बात है? कहा मैंने खरीदा था। कहा ये पैसा ले लो, मेरे गुलाम से गलती हुई है, तार कपड़ा बगैर ऐब बताए कि आपको दे दिया। और हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हुजूर का इरशाद ये है, मन खस्ता अलैना फलैसा मिन्ना, तो किसी कौम को धोखा दे वो हम में से हो नहीं सकता। हम धोखा वाला काम नहीं करते, या तो कपड़ा लो या तो किसी अक्सर सौदा कहो। उसने कहा पैसा फेंको, हाथ बढ़ाओ, कदमों में गिरा, और कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो गया। इतना ही नहीं,
کے بعد تک پیسہ کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد کہا اپنی امانت دے لیجیے. کہا حضور میرا طریقہ یہ تھا کہ ہم نقدی پیسہ لے کے چلا کرتے تھے. ہم نے جو آپ کو پیسہ دیا تھا وہ نقدی پیسہ دیا تھا. آپ نے جب ہمارے لیے اتنا لمبا سفر کیا میری دوبارہ نہ کیا, میرے دل میں چھوڑا, پیسے کو پھینک دیا. پیسہ ویسا کی بات میں کرنا, مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دینا. پڑھانا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تجارت کرنے والا دین کی تبلیغ کرے گا. آپ نے کتنے ہزار جلسے سنے ہوں گے, کہاں کافی مسلمان بن رہا ہے. مسلمان خاک بنے گا, لڑکیوں ہندوؤں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور معاملہ یہ ہو رہا ہے اس کا اٹھنا لکشمن کے ساتھ ہو, اس کا بیٹھنا رام کے ساتھ ہو, جس کو کٹوا اور مٹوا کے فرق ہی نہ سمجھ گیا ہے کے ساتھ وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں بھاگے گا. سنو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک حضور کے زمانے کے بعد تھے صحابہ حضرت طلحہ ہیں, ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے ہیں. ان میں سے جب جوہر کا انتقال ہو گیا تو طلحہ اتنا رئیس خاندان سے تھا اور ام سلیم نے اس کو چھوڑا تھا. معلوم ہے مرتد ہو گیا تھا. کیسے ہی حضرت طلحہ نے خبر بھیجی. سلیم نے کہا سنو طلحہ یہ جتنا پیسہ والا ہے نا تمہارا نکاح کرانا نہیں چاہیے, یہ موسم خاندان سے ہے. سنو ایمان والا کا رشتہ کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا, اس لیے ہم ہمارے نکاح کو ٹھکراتے ہیں. آج کل کی ہماری بچیوں کو پتا چلتا تب نے وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں جاتے. وہ تو ہندوؤں کے ساتھ, کبھی رام کے ساتھ, کبھی لکشمن کے ساتھ, کبھی دیپک کے ساتھ, وہ رنگڑیاں منائے, وہ عیاشیاں کرے, اس کو اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہو, تو کیا فرق پائے گا کہ حقیقت کیا ہے. حضور غوث اعظم کو یہ اللہ نے مرتبہ فرمایا. کیوں؟ کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور جھوٹ نہیں بولا اس کا وجہ بھی ہے. ماں نے کبھی غلط کام نہیں کیا, باپ نے کبھی غلط کام نہیں کیا. ہم چراغ میں پانی ڈالتے ہیں اور روشنی کی امید رکھتے ہیں. آم کے درخت میں کٹر بھی ہوتا, کٹر کے درخت میں آم نہیں ہوتا. قدرت کا ایک قانون ہے, نظام ہے. تو آدمی موٹا ہوتا اس کے بچے موٹے موٹے پیدا ہوتے ہیں. آپ نیک رہو گے آپ کا بچہ بھی نیک ہوگا. تم نے ایک بار گناہ کیا ہے تمہارا بچہ 50 بار گناہ کرے گا. اس لیے گناہ کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اس کا اثر میرے بیٹوں پہ پڑے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے جب کہا عزیزان ملت اسلامیہ, وہ بزرگ یہی کہے کہ آپ میرے لیے اتنی جو ہے تم نے تو ہمارے غلام سے غلطی ہوئی, تکلیف کے بغیر اعتراض کپڑے کو بغیر بتائے ہوئے دے دیا. غلطی ہوئی, 900 کیا اور کپڑے کو بھی دیا. اس کے سچ بولنے کی وجہ سے اس کافر مسلمان بھی ہوا. ہم کہتے ہیں مولانا نے کہا اگر جھوٹ بولیں گے نہیں تو پھر بال بچوں کا خرچہ کہاں سے ہوگا, حالات کیسے صحیح ہوں گے, ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں کیسے سفر کریں گے, تیل کا خرچہ کہاں آئے گا, ہم گھوم کیسے سکیں گے. سنو اس بزرگ سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں آتے نقلی پیسہ ملتا معاملہ سے حاصل کرتا. یہ پہلی ملاقات تھی کہ حضرت اسلم صاحب جو آپ کے امام ہیں انہوں نے ہم دونوں کو ملاقات کرایا. جو کچھ بیان ہوا واقعہ سے بادشاہ ہم سبھی توبہ کرتے ہیں. نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.